Hello everyone, so welcome back to the channel. It's called as Mathematics by Rumina, and in this video we are going to understand about relations and function. Question number 6 to question number 15. I will try to cover all the questions जो मेरे बचे हुए हैं. Please remember question number 1 to 5 जो था that is there in my part 2 and introduction is also there in my part 1. Remember that please. अगर आप question number 6 to 15 देखने आ रहे हैं, so it's my request go and watch the introduction and first 1 to 5th questions. बच्चों को नॉर्मली बहुत ईजी लगता है कि इंट्रोडक्शन में हम क्या ही नया सीखेंगे. प्लीज़ वॉच माई वीडियो. जितना भी कंटेंट है आपका फ्रूटफुल है फॉर द CBSE पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैंने सारा वहाँ पर कवर किया है. इवन फॉर द JEE मेन स्टूडेंट्स आई विल से वहाँ से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जो कॉन्सेप्ट आपके अनक्लियर रहते हैं, वहाँ से एक बार रीड करना एंड बिलीव मी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बिकॉज मैंने उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकते थे सब कवर किया है इंट्रोडक्शन में और स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 क्वेश्चन में. They are deadly important stuff, so please go and watch that video firstly. Now let's not waste more time and let's understand your question number 6. It says me that show that relation R in a set 1 2 3 given by R is equals to 1 2 and 2 1 is symmetric, not reflexive and not transitive. Since we know that 1 1 कहाँ है, जो मेरा 1 1 है that doesn't belongs to R, so I can just write since 1 1 does not belongs to R, so therefore it is not reflexive. And for symmetric we know that since 1 2 belongs to R and 2 1 also belongs to R, so therefore it is symmetric. Even you can say that since x y belongs to R and y x also belongs to R, so therefore it is going to be your symmetric. काफ़ी सिंपल सा रिलेशन था, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं था. And the third one would be since 1 2 belongs to R but 1 2 belongs to R and 2 1 belongs to R, that is x y belongs to R, y z also belongs to R, but 1 1 because x क्या है यहाँ 1 है, z भी क्या है यहाँ 1 है, और ये क्या है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है इस रिलेशन के अंदर, सो देयरफॉर नॉट ट्रांसिटिव. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था. ऐसे क्वेश्चन आपको CBSE में बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने जल्दी एक्सप्लेन कर दिया बिकॉज देयर इज नथिंग विच नीड टू बी मोर एक्सप्लेन्ड. ओके, सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7. जिसने 1 to 5 वीडियोस देखी होगी ना, उनको कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज वहाँ थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग में. यहाँ पर थोड़ी सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट होता ही नहीं है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 7. इट सेज मी दैट show that the relation R in a set A of all the books in a library of a college given by R is equals to x y such that x and y have the same number of pages is an equivalence relation. Always remember पेपर में ज़्यादा आपको equivalence relation का जो क्वेश्चन है वही देखने को मिलेगा. Since they want you that you should know equivalence relation covers symmetric, reflexive and transitive. जब ये तीनों कवर हो जाएंगे ऑब्वियसली हमें क्या होगा, equivalence relation होगा. ऐसे क्वेश्चन आपको नॉर्मली केस स्टडीज़ में देखने को मिलता है या फिर फॉर 5 मार्क आपको देखने को मिल जाता है. Sometimes it's also for 3 marks. So now since we know that R is equals to x y so that x and y have a same number of pages. Ab now let's take a relation. R is equals to for reflexive I'm going to prove firstly. For reflexive, since I know that R such that x where x and x have same number of pages. Obviously मेरे पास अगर x कोई भी बुक है जिसके x number of pages है तो ऑब्वियसली कोई भी सेम अदर उसकी सेम बुक कितने पेजेस होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे ना. देयर इज नो डिफरेंस इन दैट. एक्स एंड हाफ्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सो देयरफॉर आई कैन जस्ट सिंपली से दैट इट्स गोइंग टू बी माय रिफ्लेक्सिव. सिंपल था. फॉर द सिमेट्रिक, सिंस वी नो दैट फॉर सिमेट्रिक सिंस वी नो दैट अगर मेरा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होगा दैट मीन्स एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. अगर एक्स और वाई दोनों क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, so what I can say that I can also say that y x belongs to R. Why? Because y और x में भी क्या होगा, obviously same number of pages होंगे ही होंगे, so it's going to be your symmetric. And similarly for transitive, since I know that x and y belongs to R, इसका क्या मतलब है कि x और y के क्या है, सेम पेजेस है. y z बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि y और z की भी सेम पेजेस है. इसका मतलब क्या है कि x और z ऑब्वियसली जब देखो x और y के सेम नंबर ऑफ पेजेस है, y और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है, सो ऑब्वियसली x और z में भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे ही होंगे. दैट इज x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. सिंपल एक्सप्लेनेशन थी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए.
Simple things to understand. Okay, now move ahead and let's understand question number 8. Show that relation R in a set A, where A is given to as 1, 2, 3, 4, 5, given by R is equals to A comma B, such that modulus of A comma A minus B is even, is an equivalence relation. Show that all the elements of 1, 3 and 5 are related to each other, and all elements of 2 comma 4 are related to each other, but no element of 1, 3, 5 is related to 2 comma 4. Simple sa question hai, no need to worry about. So first of all, let's start with reflexive. Right now I am solving question number 8. So for reflexive, since we know that मेरा जो R है वो कैसा है, वो है A comma B, such that A minus B क्या है, A minus B is even. अब एक चीज़ देखो, ये मेरे को गिवन है. अब now for reflexive, क्या मैं इस B को रिप्लेस कर सकती हूँ with A? So what I will get, अगर मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ, I am simply going to get this as A comma A such that A minus A is even, since we know that A minus A क्या होगा, 0 होगा, and 0 is an even number. So yes, therefore it is reflexive. Moving ahead with symmetrics, and काफ़ी simple है symmetric proof करना भी, since we know that x comma y, if you want you can even take A comma B, it would be the perfect thing to let it as A comma B itself. So since we know that A comma B belongs to R, that means A minus B क्या है, is even already है. If I just try to simplify this, take minus n common, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस कॉमन लिया, इन ब्रैकेट आई एम गोइंग टू हैव B minus A. दिस इज इक्वल्स टू, ऑब्वियसली मॉडुलस है तो माइनस मेरा डिसअपियर हो जाएगा, सो दैट इज B minus A. जब A minus B इवन था तो ऑब्वियसली मॉडुलस में भी क्या रहेगा, इट्स इवन नंबर ओनली, एंड व्हेन इट इज इवन आई कैन से दैट दिस इम्प्लाइज इज B comma A also belongs to R, therefore it is symmetric. And now for transitive, it's quite simple to say that if x comma y belongs to R, y comma z belongs to R, which implies that A minus B is even, and this implies is that सॉरी यहाँ पे A माइनस बी कहाँ से आ गया, एक्स जब मैंने x और y लेट किया तो मैं x और y लिखूँगी, x माइनस वाई इज़ इवन. सिमिलरली y माइनस z इज़ ऑल्सो इवन. इफ़ आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड बोथ ऑफ देम तो क्या बनेगा, x माइनस वाई प्लस y माइनस z, विच इज़ इक्वल्स टू x माइनस वाई प्लस y माइनस z. ये और ये कैंसिल हो गया, एंड ऑब्वियसली जब ये दोनों इवन थे सम भी इवन ही होगा, and we are left with x minus z, and which is even. So when it is even, I can simply say that therefore it is transitive. I hope यहाँ तक एकदम clear होगा, कोई doubt नहीं होगा. Take a screenshot. Then I'm going to move ahead and solve the other part. It says me that okay, firstly we have shown that it is a equivalence relation. So it is an equivalence relation. Now we need to show that all the elements of 1, 3 and 5 are related to each other. I'm just going to erase all the link. देखो अब 1, 3 and 5 क्या है, इज ऑब्वियसली देखो ना, अब 1 को रिलेट करना है खुद से ही, इज रिलेटेड टू ईच अदर. सो ऑब्वियसली देखो 1 minus 1 0, 1 minus 3 कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट वुड बी 2, इट्स इज ऑल्सो इवन, एंड 1 minus 5 कितना आ जाएगा, दैट इज़ 4, विच इज़ ऑल्सो इवन. तीनों क्या आ गए मेरे पास, इवन आ गए. सिमिलरली ऑब्वियसली अब बस 3 और 5 का देखना है मुझे एक बार, 3 minus 5 भी कितना होता है, 2, विच इज़ ऑल्सो इवन. तो ये सब क्या है, इवन बन गए. सो देयरफॉर आई वुड से दैट 1, 3, 5 आर इवन. यू कैन जस्ट शो दिस वर्किंग जो मैंने यहाँ पे दिखाई है, आर related to each other. In simple words, I can even say that similarly 2 and 4 are also related to each other. If you want to show the working, you can show the working. 2 minus 4 is equals to 2, which is yes, which is even. So therefore 2 comma 4 is also related to each other. Now it is asking about, but no element of 1, 3 and 5 is related to any element of 2 and 4. अब देखो अगर मैं 1 minus 2 करती हूँ कितना आएगा मेरे पास, 1 आएगा, विच इज़ नॉट इवन.
is not even. Similarly, you can subtract any one. 1 minus 4 3 आएगा, 3 minus 4 1 आएगा, 3 minus 2 भी 1 आएगा, 5 minus 2 3 आएगा. Similarly 5 minus 4 1 आएगा, which is all odd. So yes, no element of 135 is related to any element of 2,4. ये मेरा proof हो गया. Now the next part says me that show that each of the relation R in a set A is equals to x belongs to Z such that 0 less than equals to x less than equals to 12 given by this A minus B is a multiple of 4 and second part ये है. I just need to show that it is an equivalence relation and find the all sets of element related to 1 in each case. Okay, so we just need to find कि कहाँ 1 से कौन सा एलिमेंट मेरा रिलेट कर रहा है. अब एक चीज़ इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना बेटा. Since I know that the question is talking about फर्स्ट पार्ट, लेट्स सॉल्व फर्स्ट पार्ट कि a माइनस बी जो है मल्टीपल ऑफ 4 होना ही होना चाहिए. तो मल्टीपल ऑफ 4 में क्या आएंगे, 0 भी आएगा बिकॉज 4 इंटू 0 इज 0. तो 0 4 8 12 ये सर क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 4 है बेसिकली. सो अगर मैं आगे मूव करती हूँ इस क्वेश्चन के साथ, तो यहाँ से मुझे क्या पता है, यहाँ से आई नो दैट इफ़ आई जस्ट वॉन्ट टू प्रूव इट रिफ्लेक्सिव. So for reflexive, I know that R is equals to A comma B such that A minus B is a multiple of 4. So that is, अगर मुझे अब रिफ्लेक्सिव में देखना है तो कैन आई जस्ट रिप्लेस इट बाय A. सो अब एक चीज़ यहाँ से देखना, व्हाट इज A minus A? A minus A is 0 and yes 0 is a multiple of 4. तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 0 it is a multiple of 4. Hence reflexive. Now we need to prove it as symmetric, and for symmetric it's quite clear. R is equals to A comma B such that A minus B is a multiple of 4. इससे क्या पता लगेगा, R is equals to B comma A such that, because obviously minus n कॉमन ले सकती हूँ और B minus A भी क्या होगा, it is also going to be a multiple of 4. So therefore symmetric. Simple logic है बहुत ही. And similarly you can prove your transitive also. Transitive में मुझे क्या दिखाना होगा इसमें, for transitive I can just show that R is equals to A comma B such that A minus B, प्लीज़ खुद लिख लेना, is a multiple of 4. R is equals to B comma C such that B minus C is a multiple of 4. And since we know that, I can just write this implies A minus B प्लस B. उठा के मैंने सिर्फ दोनों को ऐड किया है. जब मैंने इनको ऐड किया ये और ये कैंसिल हुआ तो मेरे पास क्या बचा, A माइनस B, A माइनस C. एंड ऑब्वियसली देखो जब ये दोनों मल्टीपल ऑफ 4 थे तो इनका सम भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा ही होगा. तो दैट मीन्स A माइनस C की भी क्या होगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 4. इवन यू डोंट पीपल हैव टू प्रूव एनीथिंग. आप ये डायरेक्ट स्टेटमेंट जो मैं लिख रही हूँ वो लिख देना, यू विल गेट द फुल मार्क्स. ऑब्वियसली यहाँ पे मैं डॉट डॉट लगा रही हूँ, आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा. सो देयरफॉर इट इज़ ट्रांजिटिव एंड हेंस इट इज़ अ इक्विवेलेंस रिलेशन. यहाँ तक हम अच्छे से प्रूव कर चुके हैं. नाउ वी नीड टू प्रूव दैट कि 1 का क्या मेरे पास रिलेशन बन सकता है. सो टू फॉर्म द रिलेशन विद 1 वी नीड टू टेक ऑल द वैल्यूज़. बेसिकली हमें 0 से 12 के बीच में सारी वैल्यूज़ जो है इसे कंसिडर करनी पड़ेगी. लेट्स इरेज ऑल द लिंक. अब देखो A माइनस बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है. मुझे पता है जो मेरा A है वो कैसा है, A इज़ बेसिकली 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू 12. सो A ये रहा, B ये रहा. A तो मेरे पास देखो सारे एलिमेंट्स ऑफ 1 रहेंगे ऑब्वियसली. B में एलिमेंट्स क्या रहेंगे, 1 2 3 5 9. आई हैव जस्ट टेकन सम ऑफ द एलिमेंट्स जो मेरे को लग रहा है लिंक कर सकते हैं. सॉरी, मैंने सिर्फ वही एलिमेंट्स लिए जो मेरे को लगता है कि लिंक कर सकते हैं. ठीक है. सो नाउ आई नो दैट फ्रॉम हेयर आई एम जस्ट गोइंग टू मेक दिस टेबल. 1 3 1 2 3
Let's take the element as 1, 2, 3, 5 and 9. So now since I know मेरे पास क्या था, a minus b था, 1 minus 1 0 है. Yes, obvious it's a multiple of 4. ये कितना होगा, 1 minus 2. मॉडुलस में तो माइनस साइन इग्नोर कर देना. 1 इट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4. यहाँ पे 2 आएगा, नो इट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4. यहाँ पे 4 आएगा, येस इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4. 9 minus 1 8 आएगा, येस इट्स अ मल्टीपल ऑफ 4. इवन इफ यू पिक 12 11 आएगा. 10 से मेरे पास 9 आएगा. ऐसे ही मेरे पास 8 से 7 आता. तो मैंने वो एलिमेंट्स लिए ही नहीं, जो मुझे सेफर ऑप्शन थे. मैंने आपको 2-3 एलिमेंट्स लेके दिखा दिया, वरना वैसे बच्चे इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं. बिकॉज आई जस्ट वांट मल्टीपल ऑफ 4. दैट मीन्स मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ 0 4 0 4 8 ऐसे आंसर्स चाहिए थे. तो वो मैंने यहाँ से अपने निकाल लिए. ओके, सो नाउ आई कैन जस्ट सिंपली से दैट 1 इज रिलेटेड टू, देयरफॉर just 1 minute. 1 is related to 1 5 and 9. ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मेरा आंसर हो गया. सिंपल क्वेश्चन था, इजी टू अंडरस्टैंडेबल चीज़ थी, बस समझना था. सेकेंड पार्ट आई एम गोइंग टू लीव इट एज अ होमवर्क. क्या है, ए कॉमा बी सच ए इज इक्वल्स टू बी. देखो ए इक्वल्स टू ए होगा ही होगा. इट्स गोइंग टू बी रिफ्लेक्सिव. सिंपल है ना, ए इक्वल्स टू ए रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा. जब ए इक्वल्स टू बी होगा तो बी भी इक्वल्स टू ए होगा, सिमेट्रिक होगा ही होगा. जब ए इक्वल्स टू बी है, बी इक्वल्स टू सी है, तो ए भी इक्वल होगा सी के. इट्स गोइंग टू बी ट्रांसिटिव. और 1 किससे रिलेट करेगा, 1 सिर्फ खुद से रिलेट कर सकता है, बिकॉज वो खुद ही इक्वल हो सकता है. तो 1 इज रिलेटेड टू 1. खत्म क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने होमवर्क दे दिया. सिंपल लॉजिक. आई होप कि कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा. ये खत्म हुआ मेरे पास मेरा क्वेश्चन नंबर 9 भी. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 10. इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबके एग्जांपल्स देने हैं. तो आई एम गोइंग टू डायरेक्टली एक्सप्लेन यू द एग्जांपल्स. मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी. आप इसके एग्जांपल्स जो है ऑन द स्पॉट ईजिली बना सकते हो, कभी भी कोई मुश्किल नहीं आती है. क्वेश्चन नंबर 10. It says me give an example of a relation which is symmetric but neither transitive nor reflexive. That is this example जो हमने अभी ऑलरेडी सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर. सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी पेस्ट दैट एग्जाम्पल. हम लोग कुछ और नहीं लिखेंगे, हम लोग बस ये लिखेंगे. इफ़ यू राइट इट प्रॉपरली, सो लेट राइट इट वेरी प्रॉपरली, जैसे हमें पेपर में लिख के आना चाहिए, वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिख देती हूँ. सो लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 and let R be a relation on set A such that R is equals to 1, 2, 2, 1. That is your symmetric but neither transitive, neither reflexive nor transitive. Now let's move ahead to the second part. ट्रांसिटिव बट नीडर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक. और सिंपल है प्रूफ करना, कुछ मत करो. लेट आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज़ लेस देन बी. जिधर मेरे नॉर्मल ए कॉमा बी जो है रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, वैसे लिख सकते हैं. अब देखो ए क्या कभी खुद से कम हो सकता है, रिफ्लेक्सिव में ए इज़ लेस देन ए, नॉट पॉसिबल ना. ए कभी खुद से कम हो सकता है, वो इक्वल हो सकता है. यहाँ मैंने इक्वल का स्टेटमेंट लिया ही नहीं है, नॉट पॉसिबल. सेकेंड पार्ट में है ए लेस देन बी. अगर ए लेस हो गया बी से, तो क्या क्या वो बी से लेस, क्या कभी बी ए से लेस हो सकता है, हो ही नहीं सकता. नॉट सिमेट्रिक. ट्रांसिटिव होगा ही होगा, बिकॉज आई नो अगर ए लेस है बी से और बी लेस है सी से, तो ऑब्वियसली ए भी क्या होगा, लेस होगा सी से. देयरफॉर इट इज ट्रांसिटिव. सिंपल क्वेश्चन था. इफ़ यू वांट यू कैन इवन मेक द एग्जांपल लाइक दिस, जैसे यहाँ पे बना हुआ है. वो आपकी खुद की मर्जी है. इट्स योर कॉल बेसिकली हाउ यू वांट टू मेक एग्जांपल. Okay, this is your second part. And now third part. Third part says me that reflexive and symmetric but not transitive. जो मेरे पास जो भी फंक्शन होगा, इट्स गोइंग टू बी रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, पर वो ट्रांसिटिव नहीं होना चाहिए. अब अगर चलते हैं आगे, तो एक चीज़ अच्छे से ऑब्जर्व करो. रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, पर ट्रांसिटिव नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, बट ट्रांसिटिव नहीं होना चाहिए. सो इफ़ आई वॉन्ट, बहुत सारे केस बन सकते हैं. सो लेट ए इज इक्वल्स टू अगेन 1 2 3 एंड लेट आर बी अ रिलेशन
and let R be a relation on A such that R is equals to 1, 1, 2, 2, 3, 3. सिमेट्रिक तो इससे हो, सॉरी रिफ्लेक्सिव तो इससे हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना था, ये तो हो गया. सिमेट्रिक के लिए 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1. सिमेट्रिक भी हो गया. ट्रांसिटिव क्यों नहीं है? एक चीज़ यहाँ से अच्छे से ऑब्जर्व करो. 1, 2 है मेरे पास, बट 2, 3 नहीं है मेरे पास. आई गेटिंग द कॉन्सेप्ट? मैंने यार 2, 3 जानबूझ के नहीं लिखा कि ना ही 2, 3 होगा और ना ही हमारे पास कॉन्सेप्ट उठेगा. सो अगर मेरा बी 2 या 3 में से कुछ भी होता है, सो आई डोंट हैव सी, दैट इज़ द थर्ड एलिमेंट. सो बेसिकली अगर मेरे पास 1, 2 है, 2, 3 भी नहीं है, सो मुझे पता है जब 2, 3 नहीं है तो 1, 3 है ना. समझो बेटा इस चीज़ को, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ समझने के लिए कि मेरे पास 1, 2 है, बट 2, 3 मेरा बिलोंग नहीं कर रहा आर को, ये बिलोंग कर रहा है ना. वेट मेरा अच्छे से एक्सप्लेन करते थोड़ा सा, ये तो और डाउट हो जाएगा वरना. इफ आई जस्ट से 1, 2 belongs to R, but 2, 3 does not belongs to R, whereas 1, 3 belongs to R. समझे? इसलिए ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है. इसका मतलब यहाँ पे जो मेरे ये वाला जो एलिमेंट है ये कुछ भी हो सकता है, या यहाँ पे भी मैं अपना 2 या 3 में से कुछ भी एलिमेंट लूँगी, उसका रिलेशन नहीं बन पाएगा. सो देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव. क्लियर हुआ अच्छे से? नहीं क्लियर हुआ जस्ट एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना. आई विल मेक अ शॉर्ट नोट और समथिंग फॉर दिस, ताकि समझ आ जाए आप लोगों को. ठीक है. नाउ फोर्थ पार्ट इज जहाँ मुझे क्या प्रूव करना है, दैट इट इज़ योर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव. सिंपल सा है, इसी सिचुएशन से मैं उठा के इसे प्रूव कर दूंगी. लेट A इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 and let R be a relation, and let R be a relation on A such that R is equals to 1, 1, 2, 2, 3, 3. इससे मेरा रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा. and 1, 2, 2, 3 and 1, 3. यहाँ से मेरा ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया. 1, 2 है, दैट इज A, B बिलोंग्स टू आर है, B, C बिलोंग्स टू आर है, तो A, C भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है. तो इसलिए मेरा ट्रांजिटिव भी हो गया, बट मेरा सिमेट्रिक नहीं होगा सिंस 1, 2 है, 2, 1 नहीं है. नॉट रिफ्लेक्स, नॉट सिमेट्रिक. सिंपल था. मैंने आपको थर्ड और फोर्थ दोनों ही सेम पॉइंट से बना के दिखा दिया. एंड नाउ द लास्ट पार्ट, दैट इज योर फिफ्थ पार्ट, विच सेज मी कि अब जो मेरा फंक्शन है वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो होना चाहिए, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए. तो काफ़ी ईजी है बनाना. 1, 1, 2, 2 और 3, 3 मत लेना, उसके अलावा जो एलिमेंट्स लेने ले लो. तो फिफ्थ में देखो क्या करना है, सेम लिखेंगे. लेट A इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड लेट रिलेशन R on set AB, R is equals to 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2. देखो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में देखो 1, 2 है, 2, 1 है, 1, 3 है, 3, 1 है, 2, 3 है, 3, 2 है. अब एक चीज़ देखो ट्रांजिटिव की, 1, 2 है, 2, 1 है, सॉरी 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 भी है. सिमिलरली 3, 1 है और मेरे पास 3, 1 और 1, 2 है, सो 3, 2 भी होना चाहिए, वो भी है. सो इट इज़ सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1, 1, 2, 2, 3, 3 नहीं है. मैंने लिया ही नहीं इसलिए वो नहीं है. ठीक है, सिंपल लॉजिक है, ये ईजी चीज़ है प्रूव करने के लिए. नाउ लेट्स मूव अहेड फॉर प्रूविंग योर क्वेश्चन नंबर 11. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पेपर में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ if the question says me show that the relation R in a set A, show that the relation R in a set A of a points in a plane given by R is equals to P, Q such that distance of the point P from the origin is same as distance of point Q from the origin is an equivalence relation. Further show that the set of all points related to P is not equal to 0, 0 is a circle passing through P with origin as the center.
नाउ इट्स सेइंग मी दैट फर्स्टली आई जस्ट नीड टू शो इट्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जहाँ मेरा पी कॉमा क्यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन. बेसिकली रेडियस की बात हो रही है. ओके, इट्स सीक्रेट कि यहाँ पे रेडियस की बात कर रहा है इतना घुमा फिरा के. कोई एक रिलेशन आर है सेट ए में ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय, कोई मेरे पास पॉइंट्स है पी कॉमा क्यू. सिंस आई नीड टू फर्स्टली प्रूव इट रिफ्लेक्सिव, सो रिफ्लेक्सिव पॉइंट्स कहते हैं सेम होते हैं. सो पी कॉमा पी है सच दैट distance of the point P, distance of the point P from the origin is same as distance of the point P from the origin. So obviously P और P ही है तो दोनों सेम होने वाला है. It's going to be reflexive. Similarly for symmetric, I know that कि अगर मेरे पास P कॉमा Q है जो बिलोंग कर रहे हैं R को, दैट मीन्स सेम लाइन टेप देना प्लीज. डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन. तो ऑब्वियसली Q कॉमा P भी क्या होंगे, बिलोंग करेंगे R को, बिकॉज डिस्टेंस तो सेम ही है ना. जब डिस्टेंस P और Q है सेम है तो अभी Q कॉमा P का भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही रहेगा. सो इट्स गोइंग टू बी सिमेट्रिक. एंड फॉर ट्रांजिटिव इट्स क्वाइट सिंपल टू प्रूव इट कि अगर मेरे पास कोई P कॉमा Q है उसका डिस्टेंस सेम है R से, और मेरे पास कोई Q कॉमा S है उसका भी डिस्टेंस है सेम फ्रॉम द ओरिजिन, तो मुझे पता है P और S भी क्या होंगे, डिस्टेंस सेम होगा फ्रॉम द ओरिजिन. दैट इज P कॉमा Q क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P from the origin is same as distance of a point Q from the origin. Similarly, distance of a point Q from the origin is same as distance from the point S from the origin. That is the second part. Then we can say that distance of a point P from the origin is same as distance of a point S from the origin. So therefore, ये भी belong करेगा R को. This is an equivalence relation. It is an equivalence relation. और ये मुझे क्या कहता है, further show that the sets of all points related to P not equal to 0, 0 is a circle passing through the point P with the origin. अब देखोगे मुझे पूछ रहे कि कैसे कौन से सेट ऑफ पॉइंट्स मेरे पास होंगे जो सेम होंगे P से. सो दैट मीन्स वी कैन सिमिलरली से जो भी पॉइंट मेरा रेडियस को सेटिस्फाई करेंगे वो क्या होंगे, वो ऑब्वियसली मेरे P से रिलेट कर सकते हैं. दैट मीन्स वी नो दैट सर्कल इक्वेशन से कि सिंस मेरा रेडियस मुझे निकालना है तो क्या होता था, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर. ये मेरे पास क्या थी, मेरी इक्वेशन ऑफ द सर्कल थी. सो यहाँ में मेरा h और k क्या है, 0, 0 है. सो देयरफॉर आई वुड जस्ट से दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू r. जो भी सिचुएशन इसको सेटिस्फाई करेगा वो मेरा पॉइंट जो है P से रिलेट कर सकता है. दैट मीन्स आई कैन से दैट other points who have same distance from origin as OP will lie in the circle with center O and radius OP, and therefore any point which has the same distance as OP is going to relate with P. That is satisfied by this equation. यहाँ से लिख देना, you will get the full marks. Now the next part which says me show that the relation R defined in a set of all triangles as R T1, T2 such that T1 is similar to T2 is an equivalence relation. Consider three right triangle T1 with side 3, 4, 5, T2 with side 5, 12, 13 and T3 with side 6, 8, 10. Which of the triangle among T1, T2, T3 are related? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा लॉजिक है. लेट्स जल्दी कर देते हैं. क्वेश्चन 12 में देखो, पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है. रिफ्लेक्सिव में देखो हमें दोनों क्या करना है, दोनों ट्रायंगल को सेम लेना है. Show that relation R defined in the set A of all triangles R is equal to T1, T2. T1 is similar to T2. कॉन्सेप्ट है सिमिलर का, तो मुझे पता है अगर मैं सिर्फ सेम कॉन्सेप्ट ले रही हूँ, T1, T1 ले रही हूँ तो ये बिलोंग करेगा R को, बिकॉज आई नो दैट T1 इज गोइंग टू बी सिमिलर टू T1. सो देयरफॉर ये रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा. सिमिलरली इफ आई वॉन्ट टू प्रूव इट एज सिमेट्रिक, सो आई नो दैट इफ माई T1, T2 बिलोंग्स टू R, तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, जब मेरा T1 और T2 क्या है, सिमिलर है, so that is T1 is similar to T2, so this implies that T2 भी क्या होगा, सिमिलर होगा T1 से.
इसका मतलब क्या है कि T2 कॉमा T1 भी क्या होगा, बिलोंग करेगा आर को, तो सिमेट्रिक भी होगा जी। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल लॉजिक भी है। एंड फॉर ट्रांजिटिव मेरे पास क्या रिलेशन आएगा यहाँ से, whenever I know that T1 comma T2 belongs to R and T2 comma T3 belongs to R, ये यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है, यहाँ से इम्प्लाइज होता है दैट T1 comma T3 also belongs to R, और जब ये बिलोंग करेगा R को, आई कैन सिंपली से दैट इट इज़ गोइंग टू बी ट्रांजिटिव। सिंपल था। कंसिडर द थ्री ट्रायंगल्स, T1 दे दिया हुआ, T2 ये दिया हुआ, T3 ये दिया हुआ, विच ऑफ द ट्रायंगल अमंग द फॉलोइंग आर रिलेटेड। अब देखो रिलेटेड का मतलब क्या है कि सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं। सिमिलर में क्या होता था कि रेशियो जो है प्रोपोर्शनेट होती है, तो मुझे पता है 3/5, 4/12, 1/3 होता है, तो इसका मतलब T1 इज़ नॉट सिमिलर टू T2। आई एम सॉल्विंग दिस पार्ट, ठीक है। T1 तो सिमिलर नहीं है T2 से। सिमिलरली T2 और T3 को ट्राई करते हैं, तो वहाँ से अगर मैं रेशियो निकालूँ 5/6, 12/8 पॉसिबल ही नहीं है। 12 को सिंप्लीफाई करूँगी, यहाँ पे मेरे पास 3/2 आ जाएगा, नॉट सिमिलर। अब T1 और T3 बचा आखिरी के लिए, 3/6, 1/2 इज इक्वल्स टू 4/8, 1/2, ये सिमिलर हो सकता है। 5/10, 1/2, so all these are equal in a proportion to 1/2, so therefore T1 and T3 are related to each other and that is the correct answer कि T1 और T3 क्या है, related है। simple question था, take a screenshot, easy concept, and then we will start doing the question number 13. Next question, show that the relation R defined in a set A of all the polygons R is equals to P1 P2 where P1 and P2 have same number of sides। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम नंबर ऑफ साइड्स दिखाने, टेक इट एज अ होमवर्क। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो आप नहीं कर पाओगे। और एक बार एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि रिफ्लेक्सिव के लिए T1 ऑब्वियसली दो T1 है, सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में P1 P2 है, when P1 and P2 have same number of sides, so obviously P2 and P1 will also have same number of sides, so therefore P2 P1 is also belongs to R, that is symmetric. Transitive mein when P1 and P2, that means P1 and P2 have same number of sides and P2 and P3 also have same number of sides, so obviously P1 and P3 भी क्या होगा, same number of sides होंगी, that is A, B belongs to R, B, C belongs to R, so therefore A, C also belongs to R. It is an equivalence relation, बात खत्म। Which is the set of all elements in A related to a right angle triangle with side 3, 4, 5. So we will just write the set of all elements, यहाँ से पहले copy paste कर लेंगे, the set of all elements in A related to the right angle triangle T with side 3, 4, 5 which has the same number of sides। सिंपल क्वेश्चन था, आई होप कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इफ़ यू वांट मैं एक बार लास्ट स्टेटमेंट लिख देती ताकि डाउट ना रहे आप लोगों को। यू कैन जस्ट राइट वन स्टेटमेंट ओवर हेयर। माई पेन टैप स्टॉप वर्किंग, सॉरी। या सो नाउ सिंस वी नो दैट कि मुझे पता है द सेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट in A related to triangle T is the sets of all triangles। ऑब्वियसली देखो ना, ए में क्या है, ए में सारे पॉलीगन्स आ रहे हैं, तो मेरे पास जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होंगे टी के अंदर इस साइड के, तो ऑब्वियसली वो मेरे सेट्स ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, लेट एल इज बी द सेट्स ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू L1, L2 सच दैट L1 क्या है, पैरेलल है L2 के, शो दैट इट्स अ इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। फर्स्टली फॉर रिफ्लेक्सिव 14 क्वेश्चन, आई नो दैट रिफ्लेक्सिव में क्या होगा बेटा, मेरे पास रिफ्लेक्सिव में मुझे अच्छे से पता है कि मेरे जो L1 है, L1 एंड L1 आर गोइंग टू बी सेम, अगर ये दोनों पैरेलल है, सो ऑब्वियसली देखो दो साइड्स,
कोई लाइन है वो अपने आप से पैरेलल होगी ना. सो येस इट्स गोइंग टू बी बिलोंग्स टू आर. सिमेट्रिक में क्या होगा? सिमेट्रिक में तो बहुत सिंपल है क्योंकि कोई दो लाइन्स है वो पैरेलल है एक दूसरे से, विच इज़ L1, L2 बिलोंग्स टू आर. सो देयरफॉर L2 पैरेलल टू L1. दिस इम्प्लाइज इज L2, L1 भी क्या होगा? बिलोंग्स टू आर होगा ही होगा. एंड येस इट्स गोइंग टू बी योर सिमेट्रिक. एंड सिमिलरली फॉर ट्रांजिटिव आई कैन जस्ट से दैट L1 is parallel to L2 which implies L1, L2 belongs to R है. L2 is parallel to L3 belongs to R. I can just say that therefore जब L1 L2 पैरेलल है, L2 L3 पैरेलल है, सॉरी यहाँ पे कॉमा लिख देना. therefore L1 और L3 भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे और ये बिलोंग करेंगे R को. क्लियर था कॉन्सेप्ट? सिंपल कॉन्सेप्ट था बहुत ज़्यादा ही. फिर हमने क्लास 9 में सीखा हुआ है therefore इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन. सॉरी मेरा बोल के मैं थक गई हूँ इसलिए थोड़े स्टेप्स मिस जो है वो मिस कर रही हूँ. therefore it is an equivalence relation. So we need to show that the sets of all lines related to the line y equals to 2x plus 4. We have learned in class 11th that जब भी मेरे पास दो लाइन्स पैरेलल होते हैं तो उनका स्लोप क्या होता है? उनका स्लोप इक्वल होता है. यहाँ पे स्लोप क्या है? स्लोप 2 है. जब मेरे पास स्लोप 2 है दैट मीन्स जो मेरी लाइन पैरेलल होगी किस तरीके से होगी? y इक्वल्स टू 2x प्लस सी, वेयर c इज़ एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट. ठीक है ना? c जो है वो चेंज हो सकता है लेकिन वो इसी फॉर्म की लाइन होनी चाहिए. सो दैट मीन्स find the set of all lines related to the line y equals to 2x plus 4. It is only and only possible जब मेरा स्लोप 2 है because we know पैरेलल लाइन के अंदर मेरा स्लोप क्या है? इक्वल होना चाहिए था. सो दैट मीन्स जब y equals to 2x plus c की फॉर्म होगी जिसमें मेरा c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है, तब कोई भी जो भी फॉर्म की लाइन होगी, जो इस फॉर्म की लाइन होगी वो क्या होंगी? दे आर गोइंग टू बी द रिलेटेड टू द लाइन y equals to 2x plus 4. दैट वॉज द आंसर. सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल लॉजिक था. नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 15. सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. लेट आर बी द रिलेशन इन अ सेट 1 2 3 4 गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू 1 2 2 2 1 1 4 4 3 3. देखो रिफ्लेक्सिव तो है, मैंने यहीं पे देखते ही पता लगा था कि दैट येस इट इज़ गोइंग टू बी माई रिफ्लेक्सिव. वी जस्ट नीड टू वर्क ऑन कि ये सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है. ना जो आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली विजिबल ही होगा कि जो मेरा क्वेश्चन है इट इज़ जस्ट सेइंग मी कि 1 2 है. सर्च फॉर 2 1. 2 1 कहीं भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. दैट मीन्स सिमेट्रिक तो ये नहीं है. अब देखो आगे चलते हैं. मुझे पता है 1 3 है, 3 2 है, तो क्या ये 1 2 है? बिल्कुल है. सो येस इट्स गोइंग टू बी योर ट्रांजिटिव. सो दैट मीन्स ट्रांजिटिव भी है. दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. ओके, आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट सॉरी आर रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, जो मैंने यहाँ पे वो एक्सप्लेन भी कर दिया. लेट आर बी द रिलेशन इन अ सेट एन गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट आई हैव टू कंडीशन मेरे ए इक्वल्स टू बी माइनस 2 एंड बी जो है वो ग्रेटर देन 6 है. देन चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. जस्ट पुट करके देखना है. 2 4. अब एक चीज़ बताओ, क्या 2 4 ऑप्शन पॉसिबल भी है? पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज बी जो हमारा 6 से बड़ा होना चाहिए. सो नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है. ये ट्राई करते हैं. 3 8. 3 8 में देखो, जस्ट यहाँ पे पुट करके देखना. 3 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2. ये तो 6 होता है. नॉट पॉसिबल. 6 8. 6 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2. बिल्कुल पॉसिबल है. इसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बार. 8 इक्वल्स टू 7 माइनस 2. नॉट पॉसिबल. So option number C was the correct answer and that's all for your exercise 1.1 पार्ट 3 में मैंने पूरी यहाँ पे वीडियो वाइंड अप कर दी है, पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है. प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो. मैंने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है. पार्ट 1 2 एंड 3 में आपका 1.1 कंप्लीट हो जाएगा. एंड बिलीव मी, यही से क्वेश्चन आने वाले जो मैं आपको करवा रही हूँ, दे आर द मोस्ट डेडली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. उसके अलावा आपको इसकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसकी वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल में डली हुई है. यू कैन जस्ट गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो. यू एक्चुअली हैव अ ग्लिम्स से क्वेश्चन कैसे आते हैं इन योर CBSE पेपर. बिलीव मी, जो क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ एक्स्ट्रा में वो कर लेना, प्लस NCERT कर लेना. पेपर यहीं से क्रैक हो जाएगा आपका 100%. So thank you so much kids for watching my video, for loving me. Till that, bye bye, stay tuned and study hard.